بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وہ اللہ جو تمام دنیا کے انسانوں کے حالوں کو جانتا ہے۔ پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کے واقعے میں ذکر کریں گے پارسی مذہب کا اور ان کی اس رسم کا کہ جس کے اندر وہ اپنی میت کو گدھ اور چیل کووں کو کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیونکہ مسلمان اور ہندوازم کو ماننے والے لوگ تو ایسا نہیں کرتے۔ مسلمان اپنے مردوں کو دفناتے ہیں اور ہندو بھائی اپنے مردوں کا انتم سنسکار کرتے ہیں، ان کو جلاتے ہیں۔ تو پھر پارسی مذہب کے اندر یہ رسم کیوں ہے؟ ان کا ماننا کیا ہے کہ وہ اپنی میت کو گدھ اور چیل کووں کو کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ آئیے اس وجہ کو جانتے ہیں اور اس مذہب کے بارے میں بھی جانتے ہیں۔ اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ واقعہ بہت خوبصورت ہوگا۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا آنے والا ہر ایک واقعہ سب سے پہلے میرے دوستوں تک پہنچ جائے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ واقعہ۔ کہا جاتا ہے کہ پارسی ریتی رواجوں کے مطابق ان میں میت کو دفنانے کی یا ان کا انتم سنسکار کرنے کی رسم نہیں ہے، بلکہ ہندو دھرم میں میت کو آگ یا پانی کو سونپا جاتا ہے، جبکہ مسلمان اور عیسائی مذہب کے ماننے والے لوگ میت کو دفناتے ہیں۔ لیکن پارسی مذہب کے لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ پارسی لوگ میت کو آسمان کو سونپ دیتے ہیں، جسے گدھ اور چیل کوے کھا جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ٹاٹا سنس کے پورو چیئرمین سائرس مستری کی رویوار کو سڑک حادثے میں موت ہو گئی۔ سائرس پارسی مذہب کے ماننے والے تھے، لیکن ان کا انتم سنسکار یا آخری رسمیں انہوں نے پارسی مذہب کے لحاظ سے نہیں کی۔ کہا جاتا ہے کہ پارسی مذہب اور اس کی رسموں میں انتم سنسکار کی یا میت کو دفنانے کی پرتھا نہیں ہے۔ ہندو دھرم میں میت کو آگ یا پانی کو سونپا جاتا ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں میں میت کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن پارسی مذہب کے لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ پارسی لوگ اپنی میت کو آسمان کو سونپ دیتے ہیں، جسے گدھ اور چیل کوے کھا جاتے ہیں۔ پارسی مذہب کی شروعات ایران سے ہوئی۔ یہ دنیا کے سب سے پرانے مذہبوں میں سے ایک ہے۔ اس کے انویائی اگنی اپاسک ہوتے ہیں۔ پارسی مذہب کے ماننے والے لوگ، پیارے دوستو، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ ہندو دھرم کی طرح یہ آگ کو پاک مانتے ہیں۔ قصہ سنجان کے لحاظ سے پارسی 10ویں شتابدی میں ایران سے گجرات آ کر بس گئے اور یہ پشچم بھارت میں بستے ہیں۔ ان کی قریب 70,000 کی آبادی ہندوستان میں رہتی ہے اور قریب 14,000 کی آبادی پاکستان میں رہتی ہے۔ پارسیوں نے ہندوستان کے وکاس میں بہت حصہ لیا ہے۔ ٹاٹا واڈیا، گودریج پرمکھ اودھوگک گھرانے ہیں۔ چیل اور کوے اور گدھ ان کی لاشوں کو کھانے کے لیے کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ پیارے دوستو، ان کو میت کی آخری رسومات ادا کرنے کا طریقہ کافی الگ ہے۔ پارسی مذہب میں انتم سنسکار کا طریقہ یا آخری رسومات کا طریقہ اور مذہبوں سے بالکل الگ ہے۔ ہندوستان کے پارسی مذہب میں میت کے انتم سنسکار کی 2 خمیں نشین پرمپرائیں ہیں۔ پارسی آگ، پانی اور زمین تینوں کو ہی پاک مانتے ہیں، اس لیے وہ لوگ
अपने मजहब के लोगों का इन तीनों ही तरीक़ों से अंतिम संस्कार नहीं करते। पारसियों के बारे में कुछ बातें जो लोगों में राइज हैं वो ये हैं कि ये लोग बेहद अमीर होते हैं, ये विंटेज गाड़ियों में चलते हैं, लजीज खाना खाते हैं और बेहद बड़े घरों में रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पारसियों में आदमी के मरने के बाद इसका अंतिम संस्कार या आखिरी रसूमात कैसे की जाती हैं? प्यारे दोस्तों, पारसी मज़हब में अंतिम संस्कार का तरीक़ा सबसे अलग है। यहाँ ना तो मैयत को जलाया जाता है ना ही दफनाया जाता है। भारत के पारसी मज़हब में मैयत के अंतिम संस्कार की दो ख़मे नशीन परंपराएं हैं। इस परंपरा में, इस रस्म में मैयत को गिद्धों या अन्य पक्षियों के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है। दरअसल पारसी मज़हब के लोग पानी, ज़मीन और आग को काफ़ी पाक मानते हैं, जिसकी वजह से ये लोग मृतदेह को पानी और ज़मीन और आग के हवाले नहीं करते। प्यारे दोस्तों, ये मैयत के शरीर को हाथ भी नहीं लगाते। मुंबई में टावर ऑफ साइलेंस बनाया गया है। मरी हुई आत्मा को यानी मरे हुए शख्स को आसमान को सौंपने के लिए उसे इसी गोलाकार जगह की चोटी पर रख दिया जाता है। इसके बाद गिद्ध, चील और कौवे इसके जिस्म को खा जाते हैं। पारसी मज़हब के लोग मरी हुई आत्मा को यानी मरे हुए शख्स को अपवित्र मानते हैं यानी नापाक समझते हैं, इसलिए इस मैयत के शरीर को हाथ भी नहीं लगाते। यहाँ मज़हब के साथ ही कुछ लोग इसकी मैयत को टावर के ऊपर ही छोड़ कर आ जाते हैं। आसमान को आखिर क्यों सौंप देते हैं, इसकी क्या वजह है? प्यारे दोस्तों, हिंदू मज़हब में मैयत को आग या पानी को सौंपा जाता है, मतलब कि शव को जलाया या जल में प्रवाहित कर दिया जाता है। कुछ जगहों पर मैयत को दफन करने की भी परंपरा है यानी रिवाज है। वहीं मुस्लिम और ईसाई मज़हब में अपनी मैयत को धरती को सौंप दिया जाता है यानी दफन कर दिया जाता है। वहीं पारसी संप्रदाय में, पारसी मज़हब में अंतिम संस्कार बिल्कुल अलग होता है। पारसी लोग आग को देवता मानते हैं, इसी तरह पानी और धरती को भी पाक मानते हैं, जबकि मैयत को नापाक मानते हैं। ऐसे में उनका मानना है कि मैयत को जलाने या पानी में बहाने या दफन करने से आग, जल या धरती अपवित्र हो जाती है, यानी ये तीनों चीज़ें नापाक हो जाती हैं, ऐसा उनका मानना है। ऐसा करने से प्यारे दोस्तों ईश्वर की संरचना फिर दूषित होती है। वो ये कहते हैं कि अल्लाह ने या ईश्वर ने या खुदा ने जो चीज़ें बनाई हैं, पानी, ज़मीन और आग, इनको हम प्रदूषित नहीं करना चाहते, इन पर इसका हम असर नहीं डालना चाहते, इसलिए वो ऐसा करते हैं, ऐसा उनका मानना है। तो पारसी समुदाय में मैयत को आसमान को सौंप दिया जाता है। दुनिया भर में पारसी समुदाय की आबादी 1 लाख के करीब है। हिंदुस्तान में पारसियों की संख्या पहले से बहुत कम है। पारसी मज़हब की स्थापना पैगंबर ज़राथुस्त्र ने प्राचीन पुराने ईरान में 3500 साल पहले की थी। भारत में ज़्यादातर पारसी मज़हब के लोग मुंबई में रहते हैं। पारसी सिर्फ एक ही ईश्वर पर भरोसा करते हैं। पारसी समुदाय में अगर कोई लड़की दूसरे धर्म में शादी कर लेती है तो वो पारसी नहीं रहती। हिंदुओं की तरह पारसी भी पंच तत्वों की इज्जत करते हैं, यानी धरती, पृथ्वी, जल और अग्नि की शुद्धता को बनाए रखना पारसी अपना धर्म समझते हैं। मरे हुए शरीर के अंतिम संस्कार के लिए पारसी दोखमा या टावर ऑफ साइलेंस का इस्तेमाल करते हैं, जहां
मैयत को धरती से ऊपर एक ख़ास बनावट पर रख कर छोड़ दिया जाता है ताकि गिद्ध जैसे पशु पक्षी उसे खा सकें या स्वाभाविक तरीके से नष्ट हो जाए। ये ज़रूरी नहीं कि गिद्ध ही उनकी मैयत को खाएं, ये ध्यान देना चाहिए कि ऐसा करके वो ज़मीन और आग की पवित्रता को या पानी की पवित्रता को कायम रखते हैं, ये उनका मानना है। दोखमा एक गोलाकार खोखली इमारत के रूप में ऊंचे स्थान पर बना होता है जिसमें मैयत को यानी आदमी हो या औरत या बच्चा होने के लिहाज से 3 अलग अलग गोलाकार प्लेटफॉर्म पर रख दिया जाता है। बीच के हिस्से में कुछ नीचाई बनी होती है जहां बची हुई हड्डियां जमा हो जाती हैं। सदियों से दोखमा नशीनी के लिए मैयतों को दोखमा तक ले जाने का काम खांडिया के ज़रिए से किया जाता है, जो पारसियों में एक ख़ास लोग माने जाते हैं। वैदिक ज़मानों के शुरुआत में सनातनी और पारसी रस्में लगभग एक सी थीं। बाद में सनातनी हिंदू ये मानने लगे कि संस्कार पंच तत्व से बना है और इसी में विलीन हो जाता है, इसलिए अंतिम संस्कार के लिए मरे हुए शरीर को आग में समर्पित कर देना चाहिए। जबकि पारसियों ने ऐसा करना आग और धरती को जानबूझकर अपवित्र करना समझा है। आज जब गिद्धों की संख्या बहुत कम हो गई है तो पारसी मैयत को दाखमा में रखकर सोलर हीट रेफ्लेक्टर के ज़रिए उसे नष्ट करने लगे हैं। प्यारे दोस्तों, मज़हब चाहे कोई भी हो, हमें सबकी इज़्ज़त करनी चाहिए, यही बात हमको इस्लाम सिखाता है और हमें सबके खुदाओं की इज़्ज़त करनी चाहिए। इस बात को हमें इस्लाम ने सिखाया है, उनकी रस्में उनके तरीक़े से अदा की जाती हैं। बहरहाल ये वीडियो जानकारी के लिहाज से और नॉलेज के लिहाज से बनाई गई थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी अगले वाक़ये के साथ, तब तक के लिए अपने प्यारे दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।